Our next topic is types of differential equation. The problem of finding general solution integral of a given differential equation will now be considered. The solution of any differential equation may or may not be exist, even if the integral of a given equation exists. It may not be easy to find. We shall only discuss the methods of the solution of special type of differential equation. ठीक है? We shall study various methods to solve the differential equations of first order and first degree because not every first order differential equation can be solved exactly in the same manner or same method. They can be solved if they belong to the standard forms. ठीक है, हर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म से बिलोंग करेगी तो फिर उसी टाइप्स के हम सॉल्यूशन उसका निकालेंगे. ठीक है, हर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही मेथड से सॉल्व नहीं होती. बिफोर वी डिस्कस दिस method, it may be noted that the most general form of a differential equation of the first order and first degree is dy upon dx equal to f of x comma y or m of x comma y dx plus n of x comma y dy equal to 0. To find a solution of this differential equation, various methods have been developed depending upon the type of the function m and n as mentioned earlier. We shall discuss these methods now. Our first method is separable variable method. Separable variable method. If the equation 1 is shown previous slide is expressed as dy upon dx equal to m of x upon n of y, where m of x is a function of x only and n of y is a function of y only, then we may rewrite the given differential equation as n of y into dy equal to m of x dx. This equation is an separable variable form. Separate हो गए ना, y वाले टर्म्स अलग हो गए और x वाले टर्म्स अलग हो गए. In taking both sides we obtain, जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा where c is an arbitrary constant known as constant of integration. Solving the integrals we will produce the solution of given differential equation. Remarks: first, never forget to add an arbitrary constant on any side of a solution, but it is preferred to be placed on right side. The nature of the arbitrary constant depends upon the nature of the solution. The solution of a differential equation must be put in the form as simple as possible. ठीक है, हमने सोल्यूशन इंटीग्रेशन लेने के बाद हमेशा आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाना है. आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसी भी साइड लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हम उसे राइट साइड पे पुट करें. और आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की जो नेचर होगी वो डिपेंड्स करेगी नेचर ऑफ सोल्यूशन के साथ. ठीक है, और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है हमें. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट एग्जांपल. फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन y टाइम ऑफ y प्राइम इक्वल टू x. ठीक है, हम इस सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन हम वी कैन राइट y टाइम ऑफ dy अपॉन dx इक्वल टू x. अब dx को वहां ले जाएं तो ये सेपरेट वेरिएबल हो गई, सेपरेट हो गई इक्वेशन. ठीक है ना, x वाली टर्म एक तरफ हो गई और y वाली टर्म एक तरफ गई. अब इसकी क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन लेंगे. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, जब इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, 1/2 टाइम ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 1/2 टाइम ऑफ x स्क्वायर प्लस c हमने कांस्टेंट लिया. ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 2 वी गेट, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. r स्क्वायर हमने ले लिया है 2c के बराबर, क्योंकि 2c हो जाएगा, 2c को हमने r स्क्वायर के बराबर ले लिया. This is the general solution of a given differential equation. ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया. सर ये 2c को r स्क्वायर के इक्वल क्यों लिया है? बेटा कांस्टेंट है, कंजप्शन कर सकते हैं. हमने देखा कि अभी पीछे लिखा था ना कि c की जो नेचर होगी वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सॉल्यूशन पर, सॉल्यूशन किस टाइप का. हमारे पास यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ सर्किल में जा रहा था, तो हमने क्या किया कि 2c को बराबर ले लिया r स्क्वायर, यानी कि ये सर्किल इक्वेशंस पे चले गई. ठीक है, ओके सर. कांस्टेंट को हम चेंज कर सकते हैं. ओके, नाउ I have a 3 question for you. Now you have to solve this one.
dy upon dx equal to x square into divided by y equal to 1 plus x cube। ठीक है, इसे सॉल्व करके दिखाएं शाबाश, जल्दी हरी अप। Hurry up, do it fast, please. It's very simple. सर ये दो साइड पे दो इक्वेशन आ रही है, y इन टर्म्स ऑफ y आ रही है और x आ रही है। देखो आप अगर y को वहाँ लेके जाओगे तो y इंटू डी वाई हो जाएगा इक्वल टू यस सर। एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू डी एक्स। 1 प्लस एक्स क्यूब को t सपोज करो, हल करो शाबाश, जल्दी जल्दी। सर ये 1 अपॉन ये x की जो टर्म सॉल्व की है तो उसमें आ रहा है 1/3 ln 1 हाँ। प्लस x क्यूब प्लस सी प्लस c। यस सर। क्वेश्चन लगाओगे ना, 1/2 y square is equal to 1/3 ln 1 plus x cube plus c। यस इसका आंसर आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1/3 ln 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है, सबका यही आंसर आ रहा है। यस Yes सर। sir। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है Yes, ना, sir. गुड, वेरी गुड। अब रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस होमवर्क के वो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इज इट ओके नाउ? इज देयर एनी क्वेश्चन? Oh, is there any question about this? No question. Can I move to next? Yes, sir. Now reduce equations reduce to separable form। ठीक है, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो सेपरेबल फॉर्म में नहीं होती, उसे हम रिड्यूस करते हैं सेपरेबल फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy upon dx equal to f of ax plus by or dy upon dx equal to f of ax plus by plus c can be reduced to separable variables form on substituting ax plus by equal to z or ax plus by plus c equal to z। On differentiating with respect to x we will get x से लेंगे तो x1 हो जाएगा, तो a plus b into dy upon dx equal to dz upon dx। ठीक है, इसको हम चाहें तो उस क्या कहते हैं a को वहाँ लेके जाए तो माइनस का हो जाएगा और b आके डिवाइड करेगा तो dy upon dx का होगा 1 upon b into dz upon dx minus a। Then given equations becomes 1 upon b in time of dz upon dx minus a equal to f of z। या अब हमारे पास f of z में रिप्लेस होगी तो इसे सेपरेटेबल करेंगे, b वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, b will multiply on the right side, then a will be substituted to the right side to dz upon dx equal to a plus b of f of z। अब f of z को सेपरेट कर दें और dx को सेपरेट कर दें तो ये हमारे पास separating the variable we get dz upon a plus b f of z equal to dx which can be integrating easily to get the required solution। ठीक है, इसको हम सेपरेट कर देंगे, इसको सेपरेट फॉर्म में ले आप इंटीग्रेशन ले लेंगे। समझ आ गई ये? Any question about this? Sir, Yes, sir, yes. then given equation becomes, इसके बाद वाला जो है ना स्टेप वो समझाएं। Then given equation becomes, अब देखें ना आपके पास जो ये हमारे पास गिवन है ना, अगर ऊपर वाली इक्वेशन देखें आपके पास क्या थी, dy upon dx equal to f of x ax plus by। नजर आ रही है ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट? Yes, sir. dy upon dx अगर देखें तो किसके बराबर हो गया, 1 upon b टाइम ऑफ dz upon dx माइनस a के। हेलो, नहीं सर, ये कैसे हुआ तो समझाएं जरा। यही तो बता रहा हूँ, dy upon dx फर्स्ट इक्वेशन है ना। Yes, sir. अब dy upon dx हमने जो सोल्यूशन किया है, द गिवन इक्वेशन बिकम से पहले अगर देखो तो dy upon dx बराबर किसके बराबर है?
f of ax plus by. नहीं, ये dy अपॉन dx के बराबर होगा 1 अपॉन b टाइम ऑफ dz अपॉन dx माइनस a के ना। dy अपॉन sir. dx की वैल्यू देखो, dy अपॉन dx की वैल्यू ऐसी है। Yes sir. हेलो, इसको पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, हमारे पास जहाँ dy अपॉन dx लिखा है तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन b dz अपॉन dx माइनस a इसकी जगह पे। Yes sir, सही है. ठीक है, फिर f ऑफ z आ जाएगा क्योंकि z बराबर हमारा ax प्लस b के, ऐसा ही है। ठीक है ना, इट इज क्लियर नाउ? Yes sir. गुड। एनी क्वेश्चन अबाउट, एनी अदर क्वेश्चन? No sir. Good. Can I move to next slide? Yes sir. Okay, example. Now we are going to solve example. Solve the differential equation y prime equal to bracket 4x plus y plus 1 whole square. ओके, ये भी हमारे पास सेपरेट नहीं हो रही, लेकिन सेपरेटेबल है, रिड्यूस कर सकते हैं इसको। तो हमने जो अंदर वाली टर्म है 4x प्लस वाई प्लस 1 इसको ले लिया z के बराबर। किसके बराबर लिया हमने? हेलो हेलो, यस सर, z के बराबर ले लिया हमें। z के बराबर। अब इसका ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लो रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? z का हो जाएगा dz अपॉन dx बराबर हो जाएगा 4x का 4, y का होगा dy अपॉन dx और 1 का 0। इज इट ओके? यस सर। ठीक, अब यहाँ से हमने dy अपॉन dx की वैल्यू बनानी है, तो 4 यहाँ प्लस का उस तरफ चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। dy अपॉन dx बराबर रहेगा 4z dz अपॉन dx माइनस 4 के। यस सर। ठीक है, तो ये हमें dy अपॉन dx की जो वैल्यू मिली है इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें dy अपॉन dx की जगह पे, तो क्या हो जाएगा dz अपॉन dx माइनस 4 और इक्वल टू जो हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू थी वो z के बराबर, तो z पे स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। अब 4 यहाँ एक्स्ट्रा 4 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो dz अपॉन dx इक्वल टू 4 प्लस z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सेपरेट करें वेरिएबल को, z वाली वैल्यू dz के नीचे ले आए और dx वहाँ ले जाएं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू dx, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट। अब इंटीग्रेशन ले लें तो ये हमारे पास जो फार्मूला बनता है 1 अपॉन 2 tan इनवर्स z अपॉन 2, इंटीग्रेशन का फार्मूला ये इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन x आएगी और कांस्टेंट c आ जाएगा, ऐसे ही है। अब हमने z जो सपोज किया तो उसे रिप्लेस कर दें, रिप्लेस z बाय 4x प्लस y प्लस 1 वी गेट, z की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ सॉल्व की हुई है मैंने, इसे आप लोग खुद देखें और जो समझ में ना आए तो मुझसे पूछें। सर ये लास्ट स्टेप में फार्मूला कौन सा लगा है? ये बेटा फर्स्ट क्लास का फार्मूला है, 1 प्लस जेड एक्स बराबर होता है, वो हाफ एंगुलर फार्मूला पढ़े ना फर्स्ट ईयर के अंदर, 1 प्लस कोस थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के, हाफ एंगुलर फार्मूले। ठीक है, इसकी फिर इंटीग्रेशन ले ली हमने, 1 अपॉन कोस था वो 1 अपॉन सेक स्क्वायर में हो जाएगा, उससे सेक स्क्वायर में हो जाएगा, सेक स्क्वायर करेंगे तो 10 आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन। लास्ट में हम z को रिप्लेस कर देंगे, 1 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 z अपॉन 2 बचेगा, z हमारा है x प्लस वाई। इज इट ओके नाउ? एनी क्वेश्चन? नो? ओके, नाउ another form of differential equation is homogeneous equation. Okay, homogeneous equation. First homogeneous differential equation समझने से पहले हम homogeneous equation समझ लें, यानी कि homogeneous function क्या होते हैं। A function f of x, y is said to be a homogeneous function of degree n if it can be expressed in the form of f of x, y equal to x power n f of x upon y. ठीक है, तो हम कहेंगे या फिर हम इसे पुट करें, इसकी जगह पुट कर दें f of t x प्लस t y equal to t power n f of x y। हमारा फंक्शन अगेन दोबारा आ जाए where t is not equal to 0। For instance, let f of x equal to f of x, y बराबर x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइड बाय x माइनस y। अब रिप्लेस करते हैं x को विद रिस्पेक्ट विद dx और y को dy। We'll get
अब x की जगह रखेंगे हम dx और y की जगह रखेंगे dy। उसके बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो t क्यूब ऊपर कॉमन आ रहा है, t क्यूब। हेलो, t क्यूब कॉमन आ गया? यस सर। जी सर। यस सर। t क्यूब कॉमन आने का और नीचे t कॉमन आ रहा है, यस सर। तो यस सर। t क्यूब को t काटेगा तो t स्क्वायर बचेगा। जी सर। यस सर। टी स्क्वायर के साथ जो फंक्शन है वही गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। यस सर। यस सर। हमने दोबारा फंक्शन रख लिया, तो अब दोबारा हमारे पास फंक्शन आ गया ना आ गया, लेकिन टी पे स्क्वायर आ गया, तो इट मींस दैट द एफ ऑफ एक्स एक्स कॉमा वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ये होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 2 का। ठीक है, इस तरह हम होमोजेनियस Yes, फंक्शन sir. मालूम करते हैं। समझ आ गया होमोजेनियस फंक्शंस और डिग्री भी। Yes, sir. Good. Now we move to the homogeneous differential equation. A differential equation dy upon dx equal to m of x comma y divided by n of x comma y, where m of x comma y and n of x comma y are the homogeneous functions of the same degree in x and y, is called a homogeneous equation. Since m of x y and n of x y are homogeneous function of same degree in x and y, hence m of x comma y बराबर होगा x पावर n g of y upon x, और n बराबर होगा n of x y बराबर होगा x पावर n h of y upon x. Then the given differential equation becomes, दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो dy upon dx बराबर है ना m of x comma y upon n of x comma y के ऊपर फर्स्ट में देखिए लिखा हुआ है मैंने, चाहे ये कर्सर मूव कर रहा हूँ मैं, ऐसा ही है। हेलो, Yes, sir. m और n की जो वैल्यू हमने निकाली है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो बराबर है dy अपॉन dx, और x पावर n कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा g ऑफ y अपॉन x डिवाइडेड बाय h ऑफ y अपॉन x। इसको हम ले लेते हैं, ये बराबर है हमारा y ऑफ f ऑफ y अपॉन x के। ठीक है, अब हम पुट करेंगे नाउ पुट y इक्वल टू, इसको सोल्यूशन किस तरह किया जाता है वो देखें कि y हम जब होमोजेनियस कन्वर्ट चेक कर लेते हैं होमोजेनियस से, देन पुट y इक्वल टू vx डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव लोगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा, और vx का u डॉट v लगेगा, x का 1 v सेम, देन x सेम dv अपॉन dx। देन इक्वेशन 1, अब इसे हम dy अपॉन dx इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे जो हमारी प्रीवियस इक्वेशंस थी। ठीक है ना, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी f ऑफ dy अपॉन dx में हमने पुट किया, देखें यहाँ पर ये हमारा dy अपॉन dx यहाँ पुट कर दिया, और y अपॉन x यहाँ पे हमने v पुट कर दिया जिस तरह z पुट करते थे। ठीक है, फिर सेपरेटेबल वेरिएबल करेंगे, v वाले सेम अलग कर देंगे और x वाले अलग, तो सेपरेटेबल फॉर्म हो गई, तो इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, समझ आएगा। अब इसी ये प्रोसीजर समझ लें। here produce the tips that will help to solve the homogeneous equation. फर्स्ट क्या होता है हमारा, पुट y इक्वल टू vx, देन dy अपॉन dx बराबर है v प्लस x टाइम ऑफ dv अपॉन dx, ये हमने प्रूफ किया अभी। पुट द वैल्यू ऑफ y and dy अपॉन dx in the given equation, separate the variables, integrate, replace y v with, आखिर में हम क्या करेंगे v को रिप्लेस कर देंगे y अपॉन x के साथ, तो गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब देखेंगे इसी एग्जांपल करेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया, एग्जांपल सॉल्व करूँ मैं, समझाऊँ आपको? यस सर। Solve the differential equation x square plus y square in dx plus 2 time of xy dy equal to 0। ठीक है, solution given that, अब हम इनको पहले तो से होमोजेनियस फॉर्म में लाओ कि dy अपॉन dx बनाओ। ठीक है, तो ये जो dy अपॉन dx से और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस का होगा, dx आके यहाँ डिवाइड करेगा तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2xy, ऐसा हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करें तो यस सर। अब देखें ऊपर डिग्री जो है वो एक्स स्क्वायर की भी 2 है, y की भी 2 है। ठीक है, और नीचे एक्स वाई की डिग्री 1 अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगी, तो यानी कि ये होमोजेनियस है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेम डिग्री।
यस ठीक है ना। तो जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसको सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, y पुट करते हैं vx, ऊपर लिखा हुआ ना स्टेप 1 y इक्वल टू vx, और dy अपॉन dx और पुट करते हैं v प्लस x dv अपॉन dx, ये पुट करते हैं फर्स्ट स्टेप में। Yes, Hariab, give me answer please. यस सर। ठीक है, तो हम इसे पुट कर देंगे, यहाँ dy अपॉन dx से वहाँ पुट कर देंगे v प्लस एक्स टाइम ऑफ dv अपॉन dx और y की जगह पे vx। तो अब देखें यहाँ आ गया v प्लस एक्स टाइम ऑफ dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर सेम रहा, y की जगह हमने पुट कर दिया vx, नीचे भी y की जगह vx। तो अब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, यहाँ से भी नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकल कट गया, एक्स स्क्वायर मैंने काट दिया, और v यहाँ प्लस का तो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा v। उसके बाद इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अब इसको सेपरेट करेंगे, यानी कि v वाले एक तरफ कर देंगे और x वाले एक तरफ, ठीक है। तो 2v वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 1 प्लस 3v स्क्वायर डिवाइड करेगा, और x यहाँ के डिवाइड करेगा 1 अपॉन x। तो सेपरेट सही किया है मैंने, देखें यस सर। जी। सर ये समझ में ना आयो सर, जेको तां सेपरेट क्या न वेरिएबल बाबा v वारा ओडा खणी लेफ्ट साइड ते ऐं x वारो राइट साइड ते खणी अची कीअं ईंदो, 2v डिवाइड तो करे ओडा वञी मल्टीप्लाई कंदो, मथे अची वेंदो 1 प्लस 3v स्क्वायर जेको आहे हिते मल्टीप्लाई तो करे त इन साइड लेफ्ट साइड ते डिवाइड कंदो। सही आहे सर, इतना समझा जो सर जेको तां y इक्वल टू vx कयो आहे न हितां y इक्वल टू vx, अच्छा प्रीवियस का ये स्टेप लिखियल है न, चार स्टेप तव्हांखे यादि रखणा आहिनि होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करण लाइ, ठीकु आहे। पहिरीं असां y इक्वल टू vx पुट कंदासीं ऐं dy अपॉन dx जगह ते v प्लस x टाइम ऑफ dv अपॉन dx पुट कंदासीं। तो ॾिसो हाणे हिते आहे dy अपॉन dx, हिते छा अची वेंदो v प्लस x dv अपॉन dx, ऐं जिते y आहे उते अची वेंदो vx, ईअं ई थींदो। जी सर जी। पोइ हिननि खे पुट कयो असां, ठीकु आहे, असां पुट कयो सर, त एक असांजो पुट जी जी मतलब ये छो था पुट करने जी कोई इक्वेशन वगैरह है कोई? इहे छो था पुट कयूं पुट, इहे हिन करे त तव्हांखे सम्झायो आहे त जेॾी महिल असां वटि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हूंदी आहे त तव्हांखे मूं शुरू में सम्झायो त हर डिफरेंशियल इक्वेशन जेका आहे उहा सेम ई मेथड सां सॉल्व न थींदी आहे, ठीकु आहे। हर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंट स्टैंडर्ड जी आहे, जॾहिं उहो डिफरेंट स्टैंडर्ड जी आहे त हुनजो सोल्यूशन जेको आहे उहो बि डिफरेंट स्टैंडर्ड जो आहे, ठीकु आहे। हुनजो सोल्यूशन जी टाइप्स जेका आहे उहो बि डिफरेंट आहे, आई ॻाल्हि सम्झ में? यस सर। ठीकु आहे न। पोइ हिन करे असांखे छा आहे त इन जो डिफरेंट टाइप्स एंड सोल्यूशन डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड डिफरेंशियल इक्वेशन जा त असांखे सोल्यूशन करण लाइ बि डिफरेंट शयूं यूज़ करणी पवंदियूं आहिनि, ऐं डिफरेंट मेथड यूज़ करणा पवंदा आहिनि, ठीकु आहे। हाणे हीअ आहे होमोजीनियस टाइप, त होमोजीनियस टाइप जेका आहे हुन लाइ स्टेप तव्हांखे मूं प्रूफ करे ॾेखारिया स्टार्ट में, त असां y खणंदा vx, वरी जो डेरिवेटिव सही डेरिवेशन स्लाइड्स में ॾेखारी आहे, पोइ हुनजा स्टेप ॿुधाया आहिनि त कहिड़े कहिड़ा स्टेप हुन में यूज़ थींदा सॉल्व करण जा। हाणे हीअ आहे होमोजीनियस इक्वेशन, त हीअ पोइ उन स्टेपनि सां सॉल्व थींदी, सेपरेबल मेथड सां न थींदी, ठीकु आहे। इज़ देयर एनी क्वेश्चन? सम्झ अची वियो बाबा? ठीकु आहे ॻाल्हि हाणे? यस सर। ओके, तो असां v प्लस एक्स टाइम ऑफ dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y जगह ते vx पुट करे छॾियो आहे, हेठि y जगह ते vx पुट कयो आहे, मथे एक्स स्क्वायर ॿिन्ही मां कॉमन ईंदो, हेठि एक्स स्क्वायर कॉमन ईंदो, कटिजी वेंदो, v असां डायरेक्ट मूं कटे छॾियो आहे, ठीकु आहे। हुन खां पोइ हिते v लेफ्ट साइड ते पॉज़िटिव आहे, राइट साइड ते माइनस थींदो, हुन खां पोइ असां सिर्फ़ु हुनखे सिंप्लीफाई कयो आहे,
सिंप्लीफाई करने का बहुत सारी जगह वैल्यू आई है वो x टाइम ऑफ dv अपॉन dx बराबर इक्वल टू -1 प्लस 3 टाइम ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v. Now separating the variables we get 2v divided by 1 plus 3v square dv equal to 1 minus 1 upon x dx. ठीक है, it is clear now. यस सर. Okay, now सर ये सेकंड स्टेप कैसे किया है 1/3 जो सेपरेटिंग वेरिएबल्स की सेकंड लाइन पे आ रहा है? हाँ वो इस तरह किया है कि हमारे पास जो नीचे वैल्यू वो क्या है 1 प्लस 3 टाइम ऑफ v स्क्वायर है. हाँ यस सर, ठीक है समझ आ गया. हाँ समझ आ गया ना. इसको हम इसको सपोज करेंगे तो 2 नीचे आएगा तो 6v हो जाएगा. तो हमें सपोज करने के लिए 6v चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया 1/3 दे दिया अपनी तरफ से और 3 मल्टीप्लाई कर दिया 6v हो गया. अब अगर नाउ वी आर टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड लेंगे तो 1/3 ऐसे रहेगा और ये इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये ln 1 प्लस 3v स्क्वायर हो जाएगा और वो राइट साइड पे माइनस ln x हो जाएगा इस तरह से. ठीक है, अब देखें यहाँ हमने ln c कॉम्प्लीमेंट लगाया है क्योंकि हमारे आंसर में मैंने बताया ना कि टाइप देखेंगे किस टाइप का आंसर है, हम उस टाइप का कांस्टेंट लेंगे. तो यहाँ ln आ रहा था तो हमने इसलिए ln c कॉम्प्लीमेंट लिया है. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? हेलो सर ये LNC कैसे लिया है? मैंने आपको बताया था ना सेपरेबल के अंदर कि जिस टाइप का सोल्यूशन होगा हम उस टाइप का कांस्टेंट लेंगे. तो इसके सोल्यूशन के अंदर 1/3 ln 1 प्लस 3v स्क्वायर और इक्वल टू माइनस ln x आ रहा है, तो इसलिए हमने कांस्टेंट भी ln में लिया है. ओके ठीक है सर. ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो हमारे पास क्या आएगा ln 1 प्लस 3v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 टाइम ऑफ ln x प्लस 3 टाइम ऑफ ln c कॉम्प्लीमेंट. अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये माइनस का 3 जो है लॉग की प्रॉपर्टी है कि वो हमारे पास क्या होता है पावर में चला जाता है, पावर में आ गया एक्स क्यूब. ठीक है ना, और ln c कैपिटल C कर दिया हमने अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि हमने ले लिया कि ln हमारा जो c कॉम्प्लीमेंट था ना उसके भी ज़ाहिर है पावर आएगा, ऐसे ही होगा. तो हमने ले लिया जो c कॉम्प्लीमेंट के ऊपर पावर 3 है वो कंप्लीट वैल्यू होगी कैपिटल C के बराबर. कांस्टेंट हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने ले लिया. अब ln दोनों तरफ आ गया हमारे पास, ln कैंसिल हो जाएंगे. सर यहाँ तो बेसिकली आइडेंटिटी लगेगी ना, ln a माइनस ln b बराबर होगा ln a अपॉन b. वही लगी ना, उसके बाद ln कैंसिल होगा ना. यस सर. और हमारे पास जो v स्क्वायर है उसके अंदर हम पुट कर देंगे. हमने y क्या लिया था vx, तो v क्या हो जाएगा y अपॉन x. v की जगह पुट कर देंगे y अपॉन x, तो यहाँ हो जाएगा 3v स्क्वायर है तो हो जाएगा 3y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर. इसको एलसीएम लेंगे दोनों के साथ तो x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब एक्स क्यूब जो है वो हमारा c के साथ जो था वो यहाँ डिवाइड करा था, यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x को मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर इक्वल टू c. ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इसका. टुडे वी डिड सेपरेबल वेरिएबल रिड्यूस टू सेपरेबल एंड होमोजेनियस इक्वेशन. ठीक है.